अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम बैक। आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक सोसाइटी इन मिडिवल इंडिया। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ हिस्ट्री एंड पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स, और वी कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम. Similarly, we also discussed some changes and developments that occurred in India during the medieval period. Let us try to understand what kind of society emerged in India during this period. So, this period witnessed the emergence of some important political groups in India, such as Rajputs, Jats, Marathas, Sikhs, Ahoms, Kayasthas, and other groups as well. तो सबसे पहले बात करेंगे राजपूत्स की। राजपूत्स दे आर कॉल्ड एज द ब्रेव सोल्जर्स, द फाइटर्स, द रूलर्स, एज वेल एज दे वर रेस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। तो राजपूत्स की डिफरेंट क्लान्स थी, डिफरेंट ग्रुप्स और फैमिलीज थी दैट एस्टैब्लिश्ड रूल इन डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ इंडिया. They were politically and socially important because they dominated the political and social structure of India during this period. The second group was Jats. Those Jats were basically the cultivators. They were basically farmers, but with the passage of time, they emerged as a political group and began to rule in some pockets of India. Similarly, Marathas, under Shivaji and his successors, and later on under Peshwas, they emerged as the main political authority in India and ruled different parts, especially Karnataka and Maharashtra. They even defeated Mughals and became a serious threat to the Britishers as well. Next, these were the Sikhs. They were most dominant in Punjab region and its adjoining areas under the rule of Maharaja Ranjit Singh. So Sikhs be equally important थे, though these were basically religious groups. The religion was founded by Guru Nanak and his successors, but later on the Sikhs emerged as a political authority and established their rule in Punjab. The Punjab became most important political center of the Sikhs. Next category, they are called Ahoms. Ahoms are basically the people of what we call the Assam today. So their language was Ahom, and now it is called as Asom or Assam. So they were equally important. They emerged during the medieval period. One more category, they are called Kayasthas. Kayasthas were neither rulers nor were any some important political group, but they were the officials. They were basically the writers who were supposed to maintain the record of rulers. For example, some ruler appointed some officials to keep the record of day-to-day happenings, day-to-day administration, revenue, and all that. They appointed these officials which came to be known as कायस्थास. तो कायस्थास असल में रिकॉर्ड कीपर्स थे, लेकिन ग्रेजुअली सोसाइटी में उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होने लगी. तो जैसे जैसे रूलर्स की इम्पोर्टेंस बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी ऑफिशियल्स की भी इम्पोर्टेंस बढ़ गई. इनके अपने होते थे अटेंडेंट्स, होते थे इनके अपने अच्छे खासे बड़े घर होते थे, इनकी सैलरीज अच्छी खासी थी, इनको लैंड ग्रांट्स मिलते थे. So they equally emerged as an important group of Indian society. So this period also witnessed the development of agriculture, which led to the clearing of the forests. Medieval times में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज होने लगी. रीजंस बहुत सारे. सबसे पहले रीजन था जिनको हम कहते हैं माइग्रेशंस. People from different corners of the world, especially from Central Asia, Iran, Iraq, Turkey, and rest of the Arab world, they came from these places and settled down in India. So as a result of these migrations, the population of India began to increase. As the population increased, it created food problems for the people. So there was a need to grow more and more food from the agriculture sector. So as a result of that, forests begin to clear. forests को क्लियर किया गया. forests को क्लियर किया गया तो एग्रीकल्चर लैंड इंक्रीज हो गई. एग्रीकल्चर लैंड इंक्रीज हो गई तो नतीजा ये हुआ जो फूड प्रोडक्शन थी वो भी इंक्रीज हो गई. इस तरह से जो डिमांड्स थी सोसाइटी की, डिमांड्स थी पूरी कंट्री की, या डिमांड्स थी डिफरेंट रीजन्स की, वो भी फुलफिल होने लगी. जहाँ एक तरफ एग्रीकल्चरल लैंड इंक्रीज हो गई, वहीं दूसरी तरफ से फॉरेस्ट्स कम होने लगे. इसके साथ साथ जैसे जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ गई, वैसे वैसे नए
जो कल्टिवेटर्स थे, पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, वो इमर्ज होने लगे। तो डिफरेंट ग्रुप्स थे कल्टिवेटर्स के जो इमर्ज हो गए इस पीरियड में, तो उनके बारे में आगे चलकर ज़रूर बात करेंगे। So the expansion of agriculture gave rise to many peasant societies and different classes of peasants, such as rich peasants who owned the land, peasants who owned the land and cattle, and peasants who also produced handicrafts. तो जैसे मैंने कहा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें एंगेज हो गए। उस टाइम पे ऑलमोस्ट 85% जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। तो इनके भी आपस में कुछ ग्रुप्स थे, इनकी भी डिफरेंट कैटेगरीज थी। एक कैटेगरी कल्टीवेटर्स की वो थी जिनकी अपनी ज़मीन थी और बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, तो वो खुद कल्टीवेशन नहीं करते थे। दे वर कॉल्ड एज ज़मींदार्स। तो ज़मींदार हो गया वो बड़ा लैंडलॉर्ड जिसके पास बहुत सारी वास्ट लैंड है, लेकिन वो खुद कल्टीवेशन नहीं करता, बल्कि उसकी ज़मीन में कल्टीवेशन कोई और करता है। तो कंडीशन ये थी जिसको हम कहते हैं क्रॉप शेयरिंग, यानी जो भी ज़मीन में से कल्टीवेट होगा उसको शेयर करेगा कल्टीवेटर और ज़मींदार। ज़मींदार यानी ऑनर ऑफ द लैंड, और कल्टीवेटर जो इसमें कल्टीवेशन करता है। तो यूजुअली जो यहाँ पे कल्टीवेशन करते थे वो उस ज़मीन के मालिक नहीं थे। तो ये ग्रुप था एक। दूसरी कैटेगरी के पीजेंट्स या कल्टीवेटर्स वो थे जिनकी अपनी ज़मीन थी और वो उसमें खुद कल्टीवेशन करते थे, क्योंकि ज़मीन ज़्यादा नहीं थी तो कल्टीवेशन खुद करते थे। कल्टीवेशन में जो भी प्रोसेसेस होते थे या जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती थी, जैसे कैटल की ज़रूरत पड़ती थी या जो सीड्स की ज़रूरत पड़ती थी या इम्प्लीमेंट्स टूल्स की ज़रूरत पड़ती थी, वो उनके पास होती थी। सो दे वर द ओनर्स ऑफ द लैंड एज वेल एट द कल्टिवेटर्स। तीसरी कैटेगरी वो थी जिनके पास ज़मीन बिल्कुल नहीं थी और अक्सर दूसरों की ज़मीन में कल्टीवेशन करते थे। उनके पास अपने टूल्स भी नहीं होते थे, उनके पास अपने कैटल भी नहीं थे, उनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी। सो दीज पीपल यूजुअली कल्टिवेटेड द लैंड्स ऑफ अदर पीपल हु हैड वास्ट लैंड ट्रैक्स। जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी उनमें कल्टिवेशन किया करते थे। तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज थी कल्टिवेटर्स की जो इमर्ज हो गए मेडिवल टाइम्स में। यहाँ पे दो टाइप्स के ग्रुप्स में बात करूँगा, दो कल्टिवेटर ग्रुप्स की बात करूँगा, जिनमें एक ग्रुप को कहते थे खुद काश्ता और दूसरे ग्रुप को कहते थे पही काश्ता। व्हेन वी से खुद एंड काश्ता, इट इज़ अ पर्शियन टर्म। खुद का मतलब होता है खुद ही करना, यानी अपनी कल्टीवेशन अपनी ज़मीन में खुद कल्टीवेशन करना। काश्ता मीन्स होती है कल्टीवेशन, यानी वो लोग जिनकी अपनी ज़मीन है, जिनके अपने कैटल है, वो खुद ही कल्टीवेशन करते हैं, फैमिली लेबर यूज़ करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हायर भी करते हैं लेबरर्स को। तो दे वर कॉल्ड एज खुद काश्ता कल्टिवेटर्स और खुद काश्ता। दूसरी कैटेगरी दे वर कॉल्ड पही काश्ता। पही का ये पर्शियन वर्ड है, इसका मतलब होता है मूवेबल, माइग्रेंट्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। काश्ता वंस अगेन इट इज़ कल्टीवेशन। तो वो कल्टीवेटर्स जो एक गांव या एक एरिया या एक रीजन से निकलकर दूसरे रीजन में कल्टीवेशन के लिए जाते थे, मजदूरी के लिए जाते थे, तो दे आर आल्सो कॉल्ड एज मजूर। ये भी पर्शियन वर्ड है, मजूर यानी मजदूर, इट मीन्स लेबरर। तो पही काश्ता वो लोग थे जिनकी अपनी कल्टिवेबल लैंड नहीं थी, या अगर थी भी तो वो बहुत कम थी, तो वो दूसरे के यहाँ कल्टिवेशन करते थे। These types of cultivators emerged in India during the medieval period, especially during the Sultanate and Mughal period. सोसाइटी की बात करें तो कास्ट सिस्टम तो था ही सिंस 1500 ईयर्स बैक। तो वी कैन से 1500 ईयर्स से कास्ट सिस्टम हिंदुस्तान में है, उससे भी ज़्यादा पीरियड में। तो उसके अलावा भी कुछ क्लासिफिकेशन और थी, दीवर कॉल्ड है सब कास्ट्स और जातीज। जाति टर्म जो है इट इज़ संस्कृत टर्म। तो इसका ये मतलब है जिसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशन। जैसे कोई पर्सन है जो वीवर है तो उसकी जाति वीविंग है या वीवर जाति का। इसी तरह से कोई स्वीपर है तो उसकी जाति बन गई स्वीपर। तो कोई जो जिसको हम बार्बर कहते हैं तो उसकी जाति वैसे ही बन गई। सो जाति वाज बेसिकली बेस्ड ऑन occupation of a person. So mostly these jatis emerged during the early medieval period and continued up to the independence of India. And even today, there are numerous jatis in India. Numerous, when we say, it means uncountable, millions of jatis. वारना की बात करें तो वारना जो है ये भी संस्कृत टर्म है। वारना का लिटरल मीनिंग होता है कलर।
तो सबसे पहले जो डिवीज़न हुआ सोसाइटी का हिंदुस्तान की सोसाइटी में एंशंट पीरियड में, तो इट वाज बेस्ड ऑन कलर। जो फॉरेनर्स थे उनका कलर थोड़ा फेयर था, और जो हिंदुस्तान में ही पैदा हुए थे उनका थोड़ा सा कलर था डार्क। तो इस बिना पर सोसाइटी डिवाइड हो गई थी। बाद में ये डिवीज़न और ज़्यादा ब्रॉड बन गया और 4 क्लासेस इमर्ज हो गए। तो उन क्लासेस को हम कहते हैं रैंक के हिसाब से ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। एक और कास्ट भी इमर्ज हो गया जिसको वर्ना सिस्टम में या कास्ट सिस्टम में आउटकास्ट कहते हैं। दे आर कॉल्ड अनटचेबल्स, दे आर कॉल्ड दलित्स, दे आर कॉल्ड हरिजन्स, दे आर कॉल्ड आउटकास्ट्स, दे आर कॉल्ड डिप्रेस्ड क्लासेस, they are called backward classes. So different terms are being used to refer what we called Dalits. तो जाति, it was one more thing that divided the people of India. So this division was very much deep, and it affected the unity of India, not only during medieval times but even modern times as well. तो यहाँ तक हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह की सोसाइटी हिंदुस्तान में इमर्ज होगी ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। यहाँ पे आपके सामने जो पिक्चर है ये आपको बताएगी कि किस तरह से जो रैंक थी कास्ट सिस्टम के अंडर हिंदुस्तान में, वो किस तरह की रैंक थी। एट द टॉप वर ऑलवेज ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स को ऑक्यूपेशन भी दिया गया था, जैसे प्रीस्टली एक्टिविटीज़ या एकेडमिक क्लास एक्टिविटीज़, जैसे पढ़ना लिखना, पूजा पाठ करना, मंदिरों की रखवाली करना एंड ऑल दैट। These people were given only this kind of job. They had nothing to do with the cultivation, business, trade, and all that. Kshatriyas, they were called as warrior group. They were called as rulers. They were called as administrators. तो इनका काम था लड़ना बिड़ना रूल करना। तो ये कास्ट सिस्टम में इनको काम दिया गया। इसी तरह से वेश्याज, दे वर आर्टिजनस, दे वर ट्रेड्समैन, दे वर फार्मर्स, दे वर मर्चेंट्स। तो इनको ये काम दिया गया। यानी हर कोई जो इस कास्ट सिस्टम को फॉलो करता था उसको इसी कास्ट सिस्टम के हिसाब से काम करना होता था। से फॉर एग्जांपल कोई भी जो किंग है वो वेश्या कास्ट का नहीं होना चाहिए, ना ही ब्राह्मण्स का। हालांकि ऐसा उल्टा भी हुआ। बहुत से ऐसे रूलर्स थे जो क्षत्रिय नहीं थे। जैसे मौर्याज की बात करेंगे, मौर्यन एम्पायर, वो क्षत्रियाज नहीं थे, वो असल में वेश्याज थे। इसी तरह से साउथ इंडिया में कुछ किंगडम्स बनी जो फाउंड की थी ब्राह्मण्स ने। तो इस तरह से सब लोग कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, बट दोज हु फॉलोड दिस सिस्टम दे प्रैक्टाइज्ड और वी कैन से दे चूज द ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू द कास्ट। नाउ मूविंग टू द शूद्रास। शूद्रास आर बेसिकली मैनुअल लेबरर्स। तो जो अपर 3 कास्ट्स काम नहीं करते हैं वो काम दिया गया शूद्रास को। अब जो ये चारों कास्ट काम करते हैं उससे छोड़कर जो काम रह जाता है वो दिया गया एक और ग्रुप को, दे वर कॉल्ड एज अनटचेबल्स। व्हाई दे आर कॉल्ड अनटचेबल्स? इट मीन्स इट वाज बिलीव्ड दैट देयर टच इज इम्प्योर, दे आर नॉट प्योर, दे आर नॉट क्लीन। So that's why most of these people, or we can say the people who belong to the four castes, remained away from these people. जो दलित्स थे, अनटचेबल्स थे, या जो जिनको हम बैकवर्ड कास्ट्स भी कहते हैं, उनका जो रहन सहन था चाहे मिडिवल सोसाइटी में या एंशियंट सोसाइटी में था, इट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द अबव फोर कास्ट्स। उनको यूजुअली सिटी या गांव से बाहर रखा जाता था, यानी उनका जो घर होना चाहिए था वो गांव से बाहर होना चाहिए था, वो सिटी से बाहर होना चाहिए था, वो टाउन से बाहर होना चाहिए था। जब कभी रोड पे चलते, दे हैड टू बीट द ड्रम और वी कैन से स्टिक्स। उन्हें आवाज़ देनी होती थी कि हम चल रहे हैं, रास्ते से हट जाइए, ताकि हमारे साथ आपको टच ना हो। ब्राह्मण्स तो इस कदर उनके साथ ट्रीटमेंट करते थे कि जब कभी कोई दलित को देखता या अनटचेबल को देखता तो वो रास्ता ही बदल लेते थे। इवन उनके साथ जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो शेयर नहीं होती थी, जैसे पानी, टेम्पल, स्कूल या किसी तरह का भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या रोड है या एग्रीकल्चरल लैंड है, तो इनको ये सब काम नहीं दिए जाते थे, इनके साथ शेयर नहीं किया जाता था। These people were supposed to take the what we can say menial jobs. When we say menial jobs, इसका मतलब होता है क्लीनिंग, वॉशिंग, ड्रेनिंग। जो ड्रेन्स होती हैं उनको क्लीन करना, जो गंदी चीज़ें होती हैं उनको साफ़ करना, यहाँ तक कि जो जानवर मर जाते हैं उनको हटाना, उनको कहीं पे डिस्पोज करना एंड ऑल दैट। So this was the condition of what we call the Dalits, and it continued under the British rule as well as even after independence.
तो यहाँ तक आप लोगों ने समझा व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी इमर्ज्ड इन इंडिया. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड the different religions that emerged in India and that we can say witnessed some changes during the same period. So, dear kids, when we say religion, religion is nothing but it's a personal belief. It is simply a belief towards one god or goddess. तो डियर किड्स, मैंने कहा religion is simply a belief, a personal belief. Those who believe in some kind of religion, they are called theists. And those people who don't believe in any religion, they don't believe in God or some kind of religious scriptures, they are called atheists. हिंदुस्तान की बात करें तो पहले से ही हिंदुस्तान में बहुत से इम्पोर्टेंट रिलीजन्स इमर्ज हुए, जिनमें हिंदुइज़्म सबसे पुराना है, फॉलोड बाय जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, अज्विकिज़्म या जिसको हम शक्ति कहते हैं, मैजिकल रिलीजन that existed in India since times immemorial. हिंदुइज्म की बात करें तो it is collectively accepted by all the people in India who believe in a number of gods and goddesses. बुद्धिज्म की बात करें, it was founded by Lord Buddha. जैनिज्म की बात करें तो it was founded by Mahavir Jaina, though he was the 24th messenger at that time. Anyways, this is a we can say vast topic, and here we are supposed to just explain the changes that occurred in these religions during the medieval period. These religions witnessed division as well. When we say division, हिंदुइज्म की बात करें तो इसमें भी डिवीजन हो गया. अब डिवीजन कैसे हो गया? Some people worshipped one god and some people worshipped other gods. Say for example, there are some people who worship Lord Vishnu, but there are others who worship Lord Shiva. There are numerous people who also worship what we can say the goddesses like Lakshmi, Parvati and all that. इसी तरह से बुद्धिज्म, इसके भी ब्रांचेस बन गए. बुद्धिज्म के दो ब्रांच हो गए, एक वो जिसमें लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स को फॉलो करने वाले थे और दूसरे वो जिन्होंने उसमें चेंज लाई, या यूं कहेंगे बुद्धिज्म में इमेज वर्शिप यानी किसी पुतले की, किसी स्टैचू की, किसी आइडल की पूजा बेसिकली नहीं थी. लॉर्ड बुद्धा इन चीज़ों पे यकीन नहीं करता था. लेकिन उनकी डेथ के बाद, काफ़ी टाइम के बाद, बहुत सारे लोगों ने लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू बनाया, लॉर्ड बुद्धा का आइडल बनाया और उसकी पूजा करने लगे. तो इस तरह से दो ग्रुप हो गए. वो लोग जिन्होंने लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू या आइडल की पूजा की, वो दूसरे वो जिन्होंने उसकी पूजा नहीं की, जो सिंपली उसकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं. तो ये दो ग्रुप्स इमर्ज हो गए बुद्धिज्म में. जैनिज्म में भी ऐसा ही हुआ. जैनिज्म में जो लॉर्ड जैना था, या जिसको हम कहते हैं महावीर जैना था, वो भी इस तरह की जिसको हम कहते हैं आइडल वर्शिप, वो इसमें बिलीफ नहीं करता था. तो उसने भी इस चीज़ की तरफ कोई कंसंट्रेशन नहीं दिया. बट आफ्टर हिज डेथ सम पीपल बिगिन टू वर्शिप हिम इन द फॉर्म ऑफ आइडल, बट देयर वर अदर पीपल हु कंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ महावीर जैना. तो जो जैनिज्म के दो ग्रुप्स थे, दे वर कॉल्ड एज दिगंबराज एंड स्वतंबराज. तो दिगंबराज हो गए वो जो आइडल वर्शिप करते हैं, स्वतंबराज हो गए वो जो आइडल वर्शिप नहीं करते हैं. तो बुद्धिज्म का भी मैंने बोला, इनके भी दो ग्रुप्स इमर्ज हो गए जो इमर्ज हो गए थे मिडिवल टाइम्स में. तो डियर किड्स, जहाँ तक बुद्धिज्म का सवाल है, इसमें भी दो ग्रुप्स इमर्ज हो गए. वन ग्रुप इज कॉल्ड एज महायाना बुद्धिज्म एंड सेकंड इज कॉल्ड हिनायना बुद्धिज्म. महायाना बुद्धिस्ट्स हो गए वो जो लॉर्ड बुद्धा की पूजा करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइडल, यानी बुद्ध की शक्ल में. हिनायना बुद्धिज्म हो गया वो जो ओरिजिनल टीचिंग्स बुद्धा की फॉलो करते हैं. दे डोंट वर्शिप आइडल्स. तो ये सारी चेंजेस अर्ली मिडिवल पीरियड में आ गई और दीज अफेक्टेड द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ ऑल दीज थ्री रिलीजन्स. तो लोग इन चीज़ों से तंग आ गए थे. अब आप बोलेंगे कैसे? हिंदुइज्म की बात करें तो देयर आर न्यूमरस गॉड्स एंड गॉडेसेस हु आर बीइंग वर्शिप्ड बाय द पीपल.
सो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाज टोटली अगेंस्ट हिंदुइज्म। जैसे लॉर्ड बुद्धा भी आइडल वर्शिप के खिलाफ था। महावीर जैनिज्म का जो इम्पोर्टेंट आइकन समझा जाता है, ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द रिचुअल्स, अगेंस्ट व्हाट वी कॉल्ड द आइडल वर्शिप। अब जब इन दोनों में भी आइडल वर्शिप आ गई तो ये बहुत क्लोज हो गया हिंदुइज्म के। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पीपल बिगेन टू ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम दीज ऑल रिलीजन्स, क्योंकि लोगों ने, जिन्होंने बुद्धिज़्म फॉलो किया, जो बुद्धिज़्म को मानते थे, जो जैनिज़्म को मानते थे, उन्होंने इसीलिए ये रिलीजन अडॉप्ट किया था क्योंकि इसमें, हिंदुइज्म में आइडल वर्शिप है, रिचुअल्स यानी पूजा पाठ करना, सेक्रीफाइसेस यानी जानवरों या इंसानों की बलि देना एंड ऑल दैट, ये चीज़ें थी। लोग परेशान हो चुके थे उन चीज़ों से। दैट्स वाई दे फॉलोड बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। अब जब जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में भी यही सब होने लगा तो वो अब इस चीज़ से दूर भागने लगे थे। अब चाहते थे कि कोई ऐसा रिलीजन आए जो वो अडॉप्ट करे और जिसमें ये सब ना हो। तो ओबेसली अपॉर्चुनिटी वाज प्रोवाइडेड बाय इस्लाम। देखते हैं आगे चलकर उन सब चीज़ों के बारे में। सो पीपल बिगिन वर्शिपिंग मेनी न्यू डाइटीज, गॉड्स और गॉडेसेस। ब्राह्मण्स और प्रीस्ट्स बिकेम इम्पॉर्टेंट सोशल ग्रुप। ब्राह्मण्स तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट थे ही, लेकिन ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गए क्योंकि अब जो भी पूजा पाठ होती है, जो भी शादी होती है, जो सेक्रीफाइसेस होते हैं, वो सिर्फ ब्राह्मण्स के कहने पर करते हैं और उसमें खर्चा बहुत आता है। गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, वो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो अब ब्राह्मण अपनी दक्षिणा भी लेता है, मीन्स गिफ्ट लेता है। प्रीस्ट्स ये इतने इंपॉर्टेंट बन गए हैं कि उनके बगैर कोई भी पूजा नहीं कर सकता। It means you cannot reach to God directly. You have to reach God through some person, and that was Brahman. तो अब ये ब्राह्मण्स, अब ये प्रीस्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म, प्रीस्ट्स ऑफ जैनिज़्म, ये बन गए जिनको हम कहते हैं मिडल मैन या मेडिटर्स। मेडिटर्स हम बोलते हैं उनको जो गॉड और इंसान के बीच में लिंक क्रिएट करने वाले होते हैं या जो खुद को ऐसा समझते हैं। एनीवेज, नया जो रिलीजन था सबसे पहले इस्लाम। तो इस्लाम emerged in India, or we can say Islam founded its way to India, obviously from Saudi Arabia. Later on, Christianity, it also founded its way from Europe to India. Let us try to understand how and when. तो इस्लाम की बात करें तो 7th सेंचुरी में यानी 600 CE या 630 के आसपास हिंदुस्तान में इस्लाम की बुनियाद पड़ी। अब ये इस्लाम आया कैसे? सबसे पहले हिंदुस्तान में पहुंचा इस्लाम साउथ इंडिया में। और साउथ इंडिया में कैसे पहुंचा? एंशियंट टाइम्स से हिंदुस्तान और सेंट्रल एशिया और वी कैन से मिडल ईस्ट यानी अरब वर्ल्ड के साथ बिजनेस करते थे, ट्रेड करते थे, शिप्स के ज़रिए, लैंड रूट्स के ज़रिए ट्रेड करते थे। वो ट्रेडर्स हिंदुस्तान से जाते सीधे अरब तक और अरब से आते तो हिंदुस्तान पहुंच जाते। तो ये आना जाना कंटिन्यू रहता था। अब जब अरब में इस्लाम की बुनियाद पड़ी, जैसे ही प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस किया कि दैट ही हैज़ बीन सेंट बाय अल्लाह एज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, तो इस तरह से इस्लाम की बुनियाद पड़ी। अब जिन जिन लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट किया वहाँ पे अरब में, तो वो ट्रेडर्स भी थे। तो ट्रेडर्स अपने इस नए रिलीजन के साथ हिंदुस्तान भी आ गए, तो हिंदुस्तान में भी वो सेटल हो गए और इस तरह से बहुत से लोगों ने साउथ इंडिया में इस्लाम भी एक्सेप्ट किया और साथ ही में यहाँ पे मस्जिद भी बनी। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी मस्जिद की बात करेंगे तो वो केरला में बनाई गई। खैर, तो जो उस टाइम के रूलर्स थे साउथ इंडिया में, उन्होंने कोई इंटरफेरेंस नहीं की इस नए रिलीजन में क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, कोई इफेक्ट नहीं लग रहा था उनको, ना ही कोई ज़बरदस्ती हो पाती थी। बल्कि कुछ रूलर्स ने तो मस्जिद बनाने में भी हेल्प की और मुसलमानों को वर्शिप का फ्रीडम भी दिया। तो खैर, जैसे ही इस्लाम आया, इस्लाम के साथ साथ नया कल्चर भी आया और हिंदुस्तान का जो अपना कल्चर था उसके साथ मिक्स हो गया एंड दिस कल्चर केम टू बी नोन एज इंडियन कल्चर और इंडो इस्लामिक कल्चर। यानी इट वाज द कॉम्बिनेशन और कल्मिनेशन ऑफ टू कल्चर्स, वन the culture of Muslims and second the culture of non-Muslims of India. Once these two cultures intermingled,
they created a new culture and this is called Indo-Islamic culture. बात करते हैं सिखिज्म की. इट वॉज फाउंडेड बाय गुरु नानक ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी इन इंडिया. तो जो गुरु नानक थे उन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी. ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट आइडल वर्शिप. तो उन्होंने ज़्यादातर जो बात की है वो मॉरल वैल्यूज़ की है. उसके बाद जो उनके जो सक्सेसर्स थे दे आर आल्सो कॉल्ड एज गुरुज, क्योंकि सबको गुरु ही बोलते हैं. गुरु मीन्स टीचर. तो गुरु नानक जी का मानना भी था कि कोई भी पर्सन जो हम कहेंगे सेलिवेशन यानी फ्रीडम फ्रॉम व्हाट वी कैन से पनिशमेंट और फ्रीडम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ऑल द इविल्स अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो गुरु, जिसको वो संगत कहते हैं, गुरु की संगत में रहिए. तो दीज पीपल, दीज द फॉलोअर्स और सक्सेसर्स ऑफ गुरु नानक केम टू बी नोन एज गुरुज. तो 10 गुरु थे, 9 गुरु थे. तो सब 9 गुरु ने अपनी अपनी टीचिंग्स दी और इन टीचिंग्स को फाइनली एक बुक में कन्वर्ट किया गया विच केम टू बी नोन एज आदि ग्रंथ साहब और गुरु ग्रंथ साहब, जो कि सिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट रिलीजियस बुक कहलाती है. मिडिवल टाइम्स में एक और मूवमेंट लॉन्च हो गई, एक और मूवमेंट स्टार्ट हो गई दैट कैम टू बी नोन एज भक्ति मूवमेंट. भक्ति इज बेसिकली अ संस्कृत टर्म और भक्ति निकला है वर्ड भक्त से. भक्त बोलते हम द पर्सन हु फॉलोज सम पर्टिकुलर गॉड और हु वर्शिप सम पर्टिकुलर गॉड. एक ऐसा पर्सन जो किसी एक गॉड या गॉडेस की पूजा करता है उसको कहते हैं भक्त. तो भक्ति मूवमेंट असल में यही मूवमेंट थी. इट वाज बेसिकली अगेंस्ट हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म because of the idol worship, because of the rituals, because of the sacrifices and all other what we can say unnecessary rituals. तो भक्ति मूवमेंट इमर्ज हो गई हिंदूज में और इसमें जो बेसिक आइडिया था वो था कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, यानी दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम. साथ ही में these bhaktas or we can say the followers of bhakti or saints of bhakti, they proposed that a person should worship only one god, not in the form of idols, not in the form of temples, not through the bathing and all that. ये ज़रूरी नहीं है आप किसी एक गॉड या गॉडेस की पूजा कीजिए, तो आप किसी एक गॉड या गॉडेस की पूजा कीजिए, बस उतना काफ़ी है. तो किसी एक गॉड या गॉडेस की पूजा कीजिए और वही इंसान को सही रास्ता दिखाएगी. तो ये मूवमेंट इमर्ज हो गई हिंदुइज्म के अगेंस्ट. इट वाज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, इट वाज अगेंस्ट रिचुअल्स, इट वाज अगेंस्ट sacrifices, it was against what we called idol worship and all that. So this worship can be done through the praise, through the what we can say poems as well as songs. अगर आप ऐसी वर्शिप करना चाहते हैं तो आपने गॉड या गॉडेस की पूजा कीजिए. ज़रूरी नहीं है आप कोई फिजिकल वर्शिप है वो करने की ज़रूरत नहीं है. इसी तरह से मुसलमानों में एक मोमेंट स्टार्ट हो गई सेंट्रल एशिया में जिसको हम कहते हैं सूफ़ी मोमेंट. तो जो सूफ़ी मोमेंट थी ये भी बिल्कुल इसी तरह से थी. इट वाज अगेंस्ट रिजिडिटी ऑफ द व्हाट वी कॉल्ड मुस्लिम उलमाज एंड मुल्लाज, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो काफ़ी मुसलमानों में काफ़ी ऐसे जिनको हम कहेंगे मौलवीज़ थे या उस टाइम के उलमास थे, उन्होंने रिलीजन को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश की उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करके. तो ये जो सूफ़ी सेंट्स थे ये भी इसी तरह से कहते थे. दे बिलीव्ड इन तसव्वुफ. इट मीन्स बिलीफ इन वन गॉड. आप अल्लाह की इबादत कीजिए और उसी से मांगे और इसके कई सारे तरीके हैं मांगने के. तो जो भी आप करेंगे आप सिर्फ अल्लाह के लिए कीजिए, यानी ह्यूमैनिटी का वर्क करना, दूसरों की हेल्प करना. दीज वर सम ऑफ द व्हाट वी कैन से बेसिक फीचर्स ऑफ सूफी मोमेंट. भक्तिज की बात करेंगे तो बहुत से भक्ति गुरुज इमर्ज हो गए जिनमें गुरु नानक जी थे, जिनमें रामदास था, जिनमें तुलसीदास था, जिनमें मीराबाई थी, या जिनमें और कुछ भक्ति सेंट्स की बात करेंगे आगे चलकर एक नया चैप्टर आएगा उसमें. सूफ़ी सेंट्स की बात करेंगे तो बहुत से सूफ़ीज़ आए हिंदुस्तान, जिनमें सुना आपने होगा नक्शबंदीज़ थे, सोहरवर्दीज़ थे, कादरीज़ थे, या और जो ग्रुप्स थे इनके वो यहाँ पे आए, उन्होंने इस्लाम को फैलाने की कोशिश की. तो असल में इनका ऑब्जेक्टिव था टू सेपरेट द मैसेज ऑफ इस्लाम थ्रू लव एंड डिवोशन टू वन गॉड दैट्स अल्लाह.
तो दोस्तों यहाँ तक हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की सोसाइटी, कल्चर या जो भी हमने अब तक पढ़ा। तो आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेड एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन इंडिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में अपने कमेंट्स भी दीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।